हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Legislatives is a counseling Vidhan Parishad. The Vidhan Parishad is the upper house of the state. Is relatives. It is a not to be executive. It is every state. Every few state have a bicameral legislatures as that mean having two house. As the president of five states, by the Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, and Jammu and Kashmir have a Vidhan Parishad. While the remaining 23 states have one house, is a Vidhan Sabha. The relatives is there is a counseling or the legacy of the British period. The parliament can create a Vidhan Parishad in the state where it does not be exit. If the legislatives assembly of the state the passes other resolutions to this effect by the majority of the state as the membership of assembly and by a majority of not be less than two-thirds of the member of the assembly present and voting and the sending the resolution to the is a parliament. Similarly, if a state has a counseling and assembly want it to be abolished, it may be adopt the resolution by a similar majority and send it to be a parliament. In this situation, parliament resolved to be abolish the concerned legislative counseling according counseling of Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and West Bengal were abolished. According to the constitution, the total number of members in the Vidhan Parishad of a state should not be exceed one-third of the total number of members of Vidhan Sabha. But this number should not be less than 40. The Jammu and Kashmir is expectations. There is the Vidhan Parishad has a 36 member. In order to be a member of legislative counseling, a person concerned should be citizen of India, have attained to the age of 30 years, be registered voter in the state, not hold any office of profit. The Vidhan Parishad is a partly elected, other particles is nominated. Most of the members are the indirectly elected in the accordance with the principle of proportional representation by means of single transferable vote is system. Different categories of members represented different interests. The composition of the legislative counseling is the following. The first year, one-third member of the counseling are selected by the number of Vidhan Sabha. Second year, one-third of the member of the Vidhan Parishad are elected by the electorate. Is a consist of the member of the municipalities, district is a board and other local body in the state. The third point here, so 1/12 is a member are elected by the electorate is a consist of the graduate in their state with the standing of 3 years. And next year, 1/12 is a member elected by the electorate is a consist of teacher of education institution within the state not a lower in a standard than to the secondary school who have a teaching experience of at least 3 years. And the remaining about the one of sixth member are nominated by the governor for the amongst the person having to special knowledge in the sphere of literatures, science, arts, and cooperative movement and social service. The Vidhan Parishad, like a Rajya Sabha, is a parliament house. It is a never to dissolve the tenures of it is a member is a 6 year. One-third of it is a member tire after every 2 years. The retiring member are the eligible for the re-elections. In case of vacancy arising out of registration of the death by the election is held for the remaining period of such a member tenure. The next point here, the chairman of the legislatives is the counseling is the presiding of officer. The presiding officer of the Vidhan Sabha legislatives counseling is known as the chairman, who is elected by the member. It is a business of Vidhan Parishad is conducted by the chairman. He presides over to the meeting and maintaining discipline and order in the house. In addition to his vote as to member, he can exercise his the casting vote in case of tie in his absence. Deputy chairman or preside over to the house. He is also elected by the member of Parishad from to amongst the himself. The next year, a season of the state legislatures here,
The state legislatures is the meet at the least twice a year, and the interval between the two seasons cannot be more than 6 months. The governor is a some months, and the progress of the season of the state legislatures, he addresses a Vidhan Sabha to both house. If there is a bicameral legislatures at the commencement of the first season after each general election and at the is a commencement of the first season of a year. This address reflects the policy statement of the government which is be discussed in the legislatures and the privilege and immunity of the member of the state legislature and similar to that of member of parliament. विधान परिषद, देखिए विधान परिषद राज्य विधायक का उच्च सदन माना जाता है, यानी सबसे ऊंचा सदन इसी को कहते हैं। अधिकतर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बहुत कम राज्य में द्विसदनीय विधायक है। आजकल 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद है, जबकि 23 राज्य में केवल एक सदन ही है अथवा केवल विधानसभा ही है। विधान परिषद ब्रिटिश काल की विरासत है। यदि किसी राज्य की विधानसभा जहां विधान परिषद नहीं है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करके सदन अथवा विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद के पास भेजे तो संसद उसी स्थिति में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में विधान परिषद है परंतु वे चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए तो संबंधित राज्यों को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजना होता है। अब संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी कि दूसरे सदन समाप्त कर दिया जाए। इसी तरीके से पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। जम्मू तथा कश्मीर इस नियम का अपवाद है तथा यहाँ जहाँ परिषद की संख्या केवल 36 ही है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्य का पंजीकृत मतदाता हो और उसके पास कोई लाभ का पद न हो। यदि बात करें विधान परिषद अधिकांश रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत होती है। अधिकतर सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद की रचना इस प्रकार देखा जा सकता है कि परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड तथा राज्य के अन्य स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रतिनिधित्व होते हैं। कुल सदस्यों का 12वां भाग राज्य के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है जिनको स्नातक बनने कम 3 वर्ष हो चुका हो। कुल सदस्यों का 12वां भाग राज्य का उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होता है जिनका अध्यापन का अनुभव कम से कम 3 वर्ष का हो तथा वह उच्च माध्यमिक तथा जो है उससे ऊपर के स्तर को जो है शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाते हों। शेष लगभग 6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी और सामाजिक क्षेत्र में जो शक्ति प्राप्त व्यक्ति हो। केंद्र में राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदस्य है और यह कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसको 1/3 सदस्य सेवा विमुक्त हो जाते हैं। सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य जो है पुण्य चुनाव लड़ सकते हैं। यदि किसी सदस्य को मरने से अथवा त्याग पद देने से कोई स्थान रिक्त होती है तो उसका चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधान परिषद की सभापति। देखिए विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है जिसे सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति चलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। सदस्य होने के नाते मताधिकार के अतिरिक्त गतिरोध को स्थिति में वह अपना निर्णय मत भी दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। उसका निर्वाचन भी सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा भी किया जाता है। बात यदि हम करें अगले पॉइंट की जो कि विधानमंडल के सत्र है, इसका अर्थ यही हुआ कि राज्य विधानमंडल का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होते हैं
और दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है तथा स्थगित भी कर सकता है। वो विधानसभा अथवा दोनों सदनों को यदि राज्य में विधान परिषद है तो आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र की आरंभिक बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र से पहले दिन संबोधित भी कर सकता है। इस संबोधन में सरकार उन नीतियों की चर्चा करते हैं जिन पर विधानमंडल बहस होनी होती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के जो है विशेष अधिकार संसद सदस्यों जैसे ही होते हैं, यानी काफ़ी जो है इनके मिलते जुलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था यहीं तक था। इसके आगे जो है इसकी पावर पे हम विचार विमर्श करेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको भी देखना आप नहीं भूलना। जब तक सभी टॉपिक सही रूल रेगुलेशन के साथ नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हर एक टॉपिक को जो है लाइन वाइज देखो, और लाइन वाइज तब देख पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरा वीडियो हर एक वीडियो जो होगा एक लाइन वाइज ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे। जब वीडियो में जाओगे चैनल पे तो वहाँ पर हर एक जो वीडियो होगा एक लाइन वाइज ही होगा, तो एक के बाद एक आप देख सकते हो, जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये छोटे छोटे पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक आपका बड़ा पार्ट भी होता है जो पूरे ही सिलेबस का होता है, तो उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें सारी बातें टू पॉइंट होती है। तो ये आपके लिए बनाया गया है और आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। त्रिपाण स्टडी सेंटर हम सदैव ही आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही कार्य करता है। तो आपका भी यही फ़र्ज बनता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाना है, जो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सबसे बड़ा जो है महत्वाकांक्षा है। दोस्तों साथ में जो है सब्सक्राइब करके रखना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।